فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اتوار کے دن باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے کچھ دیر بعد حسب معمول جو سلسلہ ہمارا مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے وہ احکام تجارت ہے، اور اس وقت ہم احکام تجارت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جیسا کہ اس سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ بالخصوص بزنس کمیونٹی، ہماری ملازمت کرنے والے افراد اور اسی طریقے سے معاشی اور مالی معاملات سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ کو شرعی رہنمائی مل جائے، شرعی رہنمائی دے دی جائے، تو اسکرین پہ اس وقت آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ وائس میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اسے سلسلے میں شامل کیا جائے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری مدنی مدثر له العالی انشاءاللہ عز و جل۔ سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور جواب آپ تک بڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جب تک مسلمان بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی کال لیتے ہیں اور کال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی میں محمد رفیق گجرانوالہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں کسی کا کام کرواتا ہوں، اس سے میں لیتا ہوں 2200 روپیہ، اور جو جدھر سے میں کام کرواتا ہوں ادھر میں دیتا ہوں 1700 روپیہ۔ اس کے ساتھ میں فائنل نہیں کرتا کہ میں نے اتنے ہی دینے ہیں یا اتنے لینے ہیں، دیتا میں 1700 ہوں، لیتا 1200۔ وہ 500 روپیہ جو میں رکھ لیتا ہوں وہ میرے لیے جائز ہے یا میرے لیے ناجائز ہے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ کام کیا کرواتے ہیں، کیا نہیں کرواتے۔ مثال کے طور پر ایک درزی ہے، ٹھیک، درزی کے پاس کام آیا، اس نے کم پیسوں کا لے لیا، یا کوئی مثال کے طور پر پنکھا بناتا ہے، 2200 روپے جو ہیں ٹھیک ہے، وہ چارجز لے لیے۔ درزی کے تعلق سے تو نہیں ہوں گے۔ جی پنکھا بناتا ہے، مثال کے طور پر موٹر بناتا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ رکھ لی دکان پر، ٹھیک ہے، اور اب دوسرے کو دے دی۔ ٹھیک ہے، آگے کسی سے بنوا لی۔ جی، جو بھی اس کی بارگیننگ اور اتفاق ہوا جی دوسرے سے بنوا کر جی پھر اس کو دے دی، ٹھیک تو ہے، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے تو مثال کے طور پر میکینک ہے، جی، وہ خود ہی وہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، کسی سے کروا کر دے دے تب بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہی صورت ہے تو اس کا ہم نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی اور اگر صورت ہے تو پھر وہ بھلے یہ بعد میں وضاحت کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شامل سلسلہ کر لی جائے گی۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد طارق بات کر رہا ہوں اقامہ تجارت میں۔ سوال میرا یہ ہے کہ میری جو ہے ریڈی میڈ کام کی جو ہے نا دکان ہے نا، تو میں جو ہے ایمبرائڈری کا کام کرتا ہوں، تو میں جب آرڈر لیتا ہوں اس آرڈر میں کپڑا کسٹمر کو دکھاتا ہوں، وہ سامنے دکان سے یا پڑوس سے لے کے دکھاتا ہوں، وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو ان کو دکھاتے ہیں، اس سے ریٹ کسٹمر سے طے کرتے ہیں، پورے یہ پورا سوٹ ہم اتنے کا آپ کو بنا کے دیں گے۔ یہ ہمارا اس طرح سے کام کرنا کیسا، اور یہ ہم کسٹمر سے ایڈوانس لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب کام بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیمنٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔
सूट बेचते तो नहीं है नहीं? नहीं, सूट नहीं बेचते, डिजाइन दिखाते हैं। मतलब फिर सूट बनाकर बेचते हैं? कस्टमर सूट लेकर आए, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कढ़ाई करते हैं, ये तो अब नहीं, ऐसा जो नहीं। मैं सवाल समझ ये पाया। कॉल दोबारा चला दीजिएगा। जी, ये तारीख बात कर रहा हूँ, इकामे तिजारत में। सवाल मेरा ये है कि मेरी जो है रेडीमेड काम की जो है ना दुकान है ना, तो मैं जो है एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। तो मैं जब ऑर्डर लेता हूँ, उस ऑर्डर में कपड़ा कस्टमर को दिखाता हूँ, वो सामने दुकान से या अड़ोस पड़ोस से लेके दिखाता हूँ। वो हमारा होता नहीं है, लेकिन हम जो है उसको उनको दिखाते हैं, उससे रेट कस्टमर से तय करते हैं पूरे, ये पूरा सूट हम इतने का आपको बना के देंगे। ये हमारा इस तरह से काम करना कैसा, और ये हम कस्टमर से एडवांस ले लेते हैं, फिर उसके बाद जब काम बनाते हैं तो फिर उसके बाद पेमेंट देते हैं। ठीक है जी। रेडीमेड सूट ये तैयार करके लोगों को देते हैं। कपड़ा किसी और दुकान से लेकर दिखाते हैं। इनके जन्म में इश्काल ये है जी कि जिस वक्त हम सौदा करते हैं हमारे पास कपड़ा मौजूद नहीं होता। तो इस काम का ताल्लुक है मेकिंग से। ठीक है, ये अक़दे इस्तिस्ना है, ठीक है, यानी ऑर्डर पर ये माल बनाकर देते हैं। सही, मेकिंग इसके अंदर पाई जा रही है। सही, तो जिस काम के अंदर मेकिंग पाई जाए कि प्रोडक्ट तैयार करके दी जाए, जी, तो जरूरी नहीं होता कि आपकी मिल्कियत में वो माल मौजूद हो, ठीक है, बल्कि आप ऑर्डर कर लें, ऑर्डर ले लें, लेने के बाद फिर अपने जो है ना वसाइल इख्तियार करें और उसके बाद जो है फिर आप वो चीज़ बेच दें, वो ठीक। प्रोडक्ट बेच दें। ठीक है, इसके बरखिलाफ अगर ये तैयार शुदा बेचते हैं जी, तो फिर जब तक इनकी मिल्कियत में नहीं है जी, तो इनको आगे बेचना और सौदा करना जायज़ नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह यह है कि पहली सूरत के अंदर तो इनको पूरा मेकिंग का अमल करना पड़ता है, सही, ये अक़दे इस्तिस्ना के अंदर आ जाता है। ठीक, तो उसकी बिना पर उस वक्त मिल्कियत में वो सूट होना, वो कपड़ा होना, ये ज़रूरी करार नहीं पाया। ठीक है, दूसरी सूरत में ज़रूरी करार पाया। सही। अगली कॉल दीजिए। काम में तिजारत में सवाल ये है कि मैं एक गवर्नमेंट के एक इदारे में काम करता हूँ। वो सामान ना कुछ बाहर से परचेज करते थे, तो मैंने उन्हें कह दिया कि जी आप सामान मुझसे लिया करें, क्योंकि मैंने स्टोर बनाया हुआ है। जैसे मैंने स्टोर नहीं बनाया और वो सामान मैं मार्केट से परचेज करता हूँ और उन्हें बेच देता हूँ। क्या मेरा ये एक काम करना, ऐसा करना शरीयत के मुताबिक है कि नहीं? काइंडली मुझे मेहरबानी फरमा के मुझे इसका जवाब दे दें। ठीक है जी। यानी गवर्नमेंट के इदारे में काम करते हैं जी, जॉब करते हैं और देखा जाएगा इनकी जॉब क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इनकी जॉब है उसी शोबे के अंदर परचेजिंग की जॉब है। ठीक है, अब ये वकील भी हैं और असील भी हैं। ठीक है, एक तरफ से वकील हैं खरीदारी के, ठीक, और एक तरफ ये है कि अपना ही माल बेच रहे हैं, यानी खरीदना भी नहीं कोई और ये बेच भी खुद ही रहे हैं। बेच भी रहे हैं। तो ये सूरत तो जायज़ हो ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा, बाद ऐसी सूरतें होंगी, यानी ये तो अक़द के एतबार से जायज़ नहीं हो सकती। बाद ऐसी सूरतें होंगी कि जहाँ पर तोहमत के मामलात होंगे, ठीक, जैसा कि फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में मसला बयान किया कि कोई वक्फ़ का मुतवल्ली है, ठीक है, तो अगर वो वक्फ़ की चीज़ें ख़रीदता है जी, तो अपने रिश्तेदारों से न ख़रीदे। सही, रिश्तेदारों से ख़रीदने में जो दयानत के तकाज़े हैं वो पूरे नहीं होंगे। ठीक, यहाँ तो इसके ज़िम्मे काम दिया गया है और ये खुद ही जब अपनी कंपनी से ये ख़रीदेगा जी, तो मुमकिन है कि जो रेट के ताल्लुक से चीज़ें हों उसके अंदर इदारे को धोखा पाया जाए। ठीक, तीसरी सूरत ये है कि इससे कोई ताल्लुक ही ना हो, डिपार्टमेंट कोई और है ख़रीदारी का, ये किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखता है और मार्केट रेट पर सौदा करता है। तो मार्केट रेट पर सौदा करने की सूरत में ये खुद भी बेच सकता है, दूसरे से भी सौदा करवा सकता है। ठीक, लेकिन ये ज़रूर है कि बाज़ इदारे ऐसे होते हैं कि वो फिर पूरी वो करते हैं, दस्तावेज़ात लेते हैं, सही, क्योंकि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं और आम इदारे हैं जी, इनके काम करने में बहुत फ़र्क है। सही, किस एतबार से फ़र्क है कि ये इदारे जो है वो काम करते हैं उन लोगों से कि जो टैक्स में रजिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट के इदारे, गवर्नमेंट के इदारे। ठीक है, गवर्नमेंट के इदारे आमतौर पर उन लोगों से काम नहीं करते तो टैक्स में रजिस्टर नहीं होते। ठीक है, तो फिर वो पूरा टैक्स वगैरह जो है जितना भी होता है, ठीक है, जिस कंपनी से वो खरीदेंगे उस कंपनी को अपने पूरे डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। सही, जनाब ये चीज़ है, मैंने इस पर टैक्स दिया है। सही, ये फिर गवर्नमेंट का जो इदारा है ये वहाँ जमा करवाएगा अपने अकाउंट में। ठीक है, फिर इस आदमी को वो टैक्स रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, ये सारे मामलात होते हैं। ठीक,
تو یہ نہ ہو کہ جب کاغذات اور ڈاکومنٹ بنانے پڑیں تو پھر یہ جھوٹ سے کام لیں، صحیح، پھر اپنا نام ظاہر نہ کرنا چاہیں. صحیح، تو معاملے کے اندر بڑی جو ہے نا وہ پیچیدگی سی ہے جی، اور بہت ساری اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی، محمد اسد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میں نے ایک درزی سے 3 سوٹ سلوائے ہیں، ان کی اجرت پہلے سے طے ہے. تو 2 سوٹ تو انہوں نے تقریباً ٹھیک سیے، لیکن ایک سوٹ بالکل ہی خراب کر دیا جو کہ پہننے کے قابل نہیں رہا، یعنی اس کی لمبائی بہت زیادہ کم کر دی. تو جو مطلب ان کو جتنی لمبائی کرنے کے لیے کہا تھا، یعنی وہ سوٹ میں پہن نہیں سکا، نیا سوٹ ہی ضائع ہو گیا. ان کے کچھ پیسے باقی رہتے تھے تقریباً 350 روپے، وہ میں نے ان کو نہیں دیے چونکہ پورا سوٹ وہ تقریباً 1000 روپے کا تھا. کیا اب مجھے وہ ان کو باقی پیسے دینے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ شرعی رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے جنرلی مسئلہ پوچھنا جی، کہ بھئی اس طرح کا کام کرنا کیسا، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہو گیا، اب ہونے کے بعد اس کی پوری عملی طور پر تطبیق کرنا. ٹھیک ہے. تو ایسے مسئلے کے اندر ایک مفتی کے اوپر اور قاضی کے اوپر یہ ضروری ہے جی، کہ وہ دوسرے فریق کی بات بھی سنے. ٹھیک ہے. 2 فریق انوالو ہو گئے. 2 فریق انوالو ہو گئے، ٹھیک ہے. قطع نظر اس کے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. صحیح ہے. مسئلہ عرض کر دیتا ہوں ٹھیک ہے. کہ درزی جو ہے وہ اگر تعدی کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی درزی ہے اجیر مشترک، ٹھیک ہے. تو اجیر مشترک جو ہے اس کے اوپر زمان کی جو صورتیں بہت واضح ہیں. صحیح. تو وہ اگر تعدی کرتا ہے تو اس کے اوپر تاوان بنتا ہے، یعنی جو نقصان اس نے کیا ہے، مثال کے طور پر کپڑا جلا دے، اس کے فعل سے جو مطلب کہ کام ہو، اس کے اوپر فقہاء نے بہت تفصیل سے جو ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں. تو تاوان کی صورتیں تو بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کا موقف لے کر آپ اس سے کوئی بات کریں. صحیح. اگلا سوال دیجیے. کام تجارت میں میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میرا کام ویلڈنگ کا ہے. اگر کوئی مجھ سے ویلڈنگ کروانے آتا ہے تو میں جب وہ پیسے پوچھتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں 50 روپے، وہ کہتا ہے نہیں جی اتنے بنتے ہیں 30 روپے، پھر وہ مجھے 30 روپے ہی دے کر چلا جاتا ہے. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. تو ممکن ہے ان کی عادت ہو کہ 50 بول کے 30 لیتے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ریٹ طے کرنا، ظاہر بات ہے کام کروانے سے پہلے ہی اس کا موقع ہوتا ہے. صحیح. لیکن ہمارے ہاں یہ ہر دوسری فیلڈ کے اندر یہ ہوتا ہے، وہ سروسز کروانے کا معاملہ ہو یا وہ کسی سروسز لی ہیں وہ معاملہ ہو یا پھر خرید و فروخت کا معاملہ ہو کہ بھاؤ طے کر لیا، پیسے دینے کی باری آئے تو کہیں گے تھوڑا سا اور کم کر دو نا. جی، جب پیمنٹ کی باری آ رہی ہے. جی. تو اب اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ کوئی معیوب سوال ہے، کیونکہ یہ ایک رائج العمل طریقہ ہے. ٹھیک ہے. لوگوں میں کاروباری دنیا میں ڈسکاؤنٹ کروانے کا یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں ایک ہی فیلڈ ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں مانگتا. پتہ ہے؟ کون سی؟ کھانے پینے کی فیلڈ. ٹھیک. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں لوگ، اور اضافی دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اضافی دیتے ہیں نا. جی جی. اس کے علاوہ جتنے بھی شعبے ہیں تقریباً یہ ہوتا ہے کہ جناب ڈسکاؤنٹ لوگ مانگ ہی رہے ہوتے ہیں، بھی کم کرو، زیادہ ہیں کم کرو. وہ چند روپے کی جب بھی ڈسکاؤنٹ اور لاکھوں کروڑ روپے کی جب بھی. جی. اور پھر جب پیسہ دینے کی باری آئے گی پھر بھی ڈسکاؤنٹ کا تقاضا ہوگا. تو اگر تو آپ راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو 30 ہی دے دو، ٹھیک ہے، تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ راضی نہیں ہیں تو سامنے والا یک طرفہ طور پر 30 روپے نہیں دے سکتا. صحیح. یعنی جب سودا بالکل درست ہوا تھا، کوئی اجرت مثل والی صورت نہیں ہے، ٹھیک، تو طے شدہ اجرت دینا ہی اس پر لازم ہے. مجھ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ان کا کام ہے ویلڈنگ کا، چھوٹا سا یہ ٹاکے کی بات کی کیونکہ انہوں نے باقاعدہ پورے کام کی بات نہیں کی. تو بہت ساری فیلڈز میں ایسا ہوتا ہے، کچھ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مکینک کو لے لیجیے، بریک ٹائٹ کرانا ہے، کلچ صحیح کرانا ہے، چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں. اور مارکیٹ کا اس میں ایک عرف ہوتا ہے کہ اتنے تقریباً اس میں چلتے ہیں. تو اب لوگ پوچھتے بھی نہیں، قیمت بھی نہیں پوچھتے بھائی کتنے پیسے لیں گے، نہ وہ کہتا ہے اتنے دینا. اب کام کرایا اور وہ جیب سے پیسے نکالے، کچھ جو بھی 10 20 50 100 روپے بنتے ہیں وہ دیے اور چلتے بنے. اور اس میں وہ بھی لے لیتا ہے عمومی طور پر، اور یہ بھی راضی رہتا ہے دیتے ہوئے. لیکن بعض اوقات اس میں بھی کلیش ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں میں اتنے نہیں لوں گا، میں تو اتنے لوں گا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟
देखें कई अकसाम बनेंगे ना यहाँ पर। एक तो चीज़ ये है कि काम की नोयत वाज़ेह है, ठीक है, काम की नोयत वाज़ेह है और उसकी उजरत जो है वो मुतय्यन करना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा ये है कि काम इतना रद्दी किस्म का है कि पता है कि 20 रुपये से ज़्यादा लगेंगे नहीं। ठीक है। मतलब कि बाज़ औक़ात होता है कि आप कंप्यूटर ले गए हैं तो उनका एक तय है कि जब हम खोल के देखने के इतने पैसे लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खोला तो इतने लेंगे, फिर काम निकलेगा उसके अलग लेंगे। सही। तो अब तय है खोल के देखने को इतने लेते हैं, तो अब बारगेनिंग का मौका ही नहीं है। सही। बारगेनिंग का मौका तो तब होगा कि जब बात आगे चलेगी। ठीक है। तीसरी सूरत ये होती है कि बाज़ औक़ात काम की उजरत तय कर ली जाती है, फिर एक और काम निकल आता है बाद में। सही। तो फिर जो दूसरा काम अगर निकल आया है तो फिर जो मार्केट रेट है उसके एतबार से इसको एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मेरा ये सवाल है कि जो कोई ठेकेदार होता है उसको काम पे पेनल्टी लगाई जाती है काम लेट करने पे या क्वालिटी ख़राब होने पे, तो शरई तौर पे इसकी क्या हैसियत है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाह खैरा। ठीक है जी। देखिए, ठेकेदारी का मामला और ख़रीदो फरोख्त का मामला मुख्तलिफ है। ठीक। ख़रीदो फरोख्त के अंदर तो ये है कि अगर किसी चीज़ के अंदर ऐब निकल आया है जी, तो ख़रीदार के पास दो इख्तियार होते हैं। ठीक है। या तो उस ऐब के बावजूद चीज़ कबूल कर ले, ठीक है, राज़ी हो जाए, ठीक है, वरना वो इसको रद्द कर दे। ठीक है। फ़िक़े हनफी में डिफरेंस लेने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। कि बंदा बोले कि यार सौदा हुआ था हमारा, चीज़ के अंदर नुक्स निकल आया और इसकी वजह से इसके 1000 रुपये कम हो रहे हैं, लिहाजा मैं 1000 कम दूंगा। ठीक है। इसकी गुंजाइश नहीं है। सही। इस बात की गुंजाइश है कि वो इसको रिजेक्ट कर दे। सही है। कि हमारा सौदा कैंसिल, इस चीज़ में फॉल्ट निकल आया है। ठीक है। या मुझे सही चीज़ दो, अगर वो मिसली है तो दूसरी चीज़ आ सकती है जैसे, तो वरना इस सौदा डील कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। तीसरी सूरत ये है कि वो उसको कबूल कर ले। सही। इसी हालत पर। ठीक। लेकिन वो काम जिसमें आप उजरत देते हैं जी, ठेकेदारी का मामला हो गया, अरबी में इसको मुकाबला कहते हैं। ठीक है। ठेकेदारी के मामले को, तो ठेकेदारी का जो मामला है, ठेकेदारी के मामले के अंदर मामला मुख्तलिफ है। ठीक है। यानी आपने एक ठेका दिया, भैया यहाँ का प्लस्तर करना है। ठीक है। अब उसने प्लस्तर पूरा नहीं किया, सही, एक दीवार छोड़ दी या छत छोड़ दी, ठीक है, तो ला मोहल्ला उसकी उजरत में तो कमी आएगी कि जो उससे काम तय हुआ था उस काम के मुकाबले में उजरत तय हुई थी। ठीक। अब वो उजरत जो है वो नहीं दी है, वो काम पूरा नहीं किया है, तो उजरत में भी कमी आएगी। सही, इसकी गुंजाइश मौजूद है। ठीक है। आखिर में आपने जो मिसाल दी उस पर एक वजाहत हो जाए कि जैसे मिस्त्री या मजदूर जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिहाड़ी वाला मामला अलग है, तो वो तो अलग ही होगा जी। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि हम गुड़ शक्कर का काम करते हैं, हमारे पास शराब बनवाने के लिए लोग गुड़ लेकर जाते हैं, तो क्या हमारा ये गुड़ उनको बेचना शराब के लिए जायज़ है या नहीं? अगर नहीं तो इसकी जो अब तक रकम कमाई है उसका क्या करें? अल्लाह अकबर कबीर। जी मुझसे गुड़ का शराब से कोई ताल्लुक है? ये तो बनाते होंगे, क्या होता है मेरे शराब बनाते होंगे जी, इस्तेमाल होती है, उसमें क्या होता है? अच्छा, अगले सिलसिले में जवाब देते हैं। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद उमर अर्ज कर रहा हूँ, जिला बहावलनगर से। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि मेरे दोस्त की ज्वेलर्स की दुकान है और वो मर्द को अंगूठी बनाते हैं, मर्दों की अंगूठियाँ, क्या ये जायज़ है या ना? हमारे फ़ुक़हा कराम ने बड़ी तफसील के साथ इस मसले को बयान किया है कि किसी दर्जी के लिए जायज़ नहीं है कि वो फासिकाना वज़ा पर कपड़े सिए। ठीक, मकरूह तहरीमी होना बयान किया है फ़ुक़हा ने। तो इसलिए सुनार के लिए भी जायज़ नहीं होगा कि वो जेवर मर्द के लिए हलाल नहीं है, वो मर्दों के लिए जेवर बनाए। ठीक है, ज़ाहिर बात है मर्द के लिए जो अंगूठी बनेगी वो औरतें तो नहीं पहनेंगी। ठीक है, डिज़ाइन में यकसा जो इख्तलाफ है जी, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। सुनार के लिए ऐसे आइटम बनाना जायज़ नहीं है। जो शरीयत ने जिसकी मुमानत करी वो अंगूठी नहीं बना सकते। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। सवाल मेरा ये है कि उधार पे जो कानून लागू होता है इंटरेस्ट का, वो तो हराम है। सवाल ये है कि ये जो इन्फ्लेशन है, अगर मैं किसी से 1 करोड़ रुपए उधार लेता हूँ घर खरीदने के लिए और वो घर खरीदता हूँ और उसको लाख रुपए महीना करके वापस करता हूँ, तो करीबन 8 साल में ये पैसे उसको पूरे हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। लेकिन 8 साल में मेरे घर की जो वैल्यू होगी वो तो
3-3.5 करोड़ रुपए तक जा पहुंचेगी और उसका जो करोड़ है वो भी टूट के मिलेगा। तो इसमें जो इन्फ्लेशन की वजह से या अफरात ज़र की वजह से जो उसकी डिवैल्यू होती है करेंसी की या नोट की, उसको हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे या उसको उसकी उजरत देंगे। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल किया है और ये मईशत के जो उतार चढ़ाव हैं उससे वाकिफ़ हैं और उम्मीद है जो मैं अर्ज़ करूँगा वो भी उसकी इतायत करेंगे। जी देखिए, आपको पता है कि एक रास्ता ऐसा है जहाँ पर आपको नहीं जाना। ठीक है। तो ला मुहाला आप बहुत सारे रास्ते निकाल लेंगे। सूद जो है वो हराम है। सही है। और 1 करोड़ रुपया इन्होंने किसी से लिया जी और लेने के बाद घर बनाया। ठीक है। अगर ज्यादा देंगे 1 करोड़ से तो वो सूद होगा। ठीक है। उस ज्यादा देने की कोई भी वजह हो, सही भाई आज हमारे माशरे के अंदर ये है ना कि भाई उतार चढ़ाव हो जाता है। जी जी। तो पहले भी तो उतार चढ़ाव होता था, अप डाउन तो है शुरू से ही। देखें, एक होता है करेंसी का उतार चढ़ाव, ठीक है, उसका तो बड़ा अच्छा हाल है कि बजाय पैसा लेने के यानी पाकिस्तानी करेंसी लेने के डॉलर में ले ले, ठीक है, तो वो मुस्तहकम रहता है, कोई मुस्तहकम करेंसी तकरीबन मुस्तहकम रहता है। ठीक है। लेकिन इन्होंने बात की है कि जो घर खरीदा है वो तो महंगा हो जाएगा। ठीक है, उसके एवज जो चीज ली है। एक आदत यही है कि प्रॉपर्टी महंगी ही होती है। जी जी। सस्ती और बहुत ज्यादा सस्ते होना अभी तक सामने नहीं आया। ठीक। तो इसका हल ये है कि बजाय आप 1 करोड़ रुपए कर्जा लेने के, जी, आप उस रकम के मालिक को कहें कि ये घर मैं खरीदना चाहता हूँ, आप ये घर खरीद कर मुझे बेच दें। सही। 1 करोड़ का घर है, आप लेके दे दें। 1 करोड़ का घर 10 साल पेमेंट पे 1.5 करोड़ का वो बेच दे। ठीक है। 2 करोड़ का बेच दे, 3 का बेच दे। ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सही। तो ये दोनों बाहमी इत्तिफाक के साथ एक सौदा कर लें। ठीक है। तो यहाँ कर्जा गायब हो गया अभी इससे। सही। कर्जा कहीं भी नहीं है। ठीक है। मोड ऑफ ट्रेडिंग चेंज हो गया है। सही है। पहले कर्जा लिया गया था, अब ये कि उसने खुद खरीदा है। जी, वो मालिक है। वो मालिक है, उसने अपना नफा रख के बेच दिया है उधार में। सही। तो इस अमल के जरिए कोई सूदी मामला लाजिम नहीं आएगा। ठीक है। और इस्तिलाह शरीयत में इस अमल को कहते हैं मुराबाहा। मुराबाहा। ठीक। तो माशाअल्लाह, वो मुफ्ती साहब ने जैसे तमीद बांधी थी, उम्मीद है उनको भी समझ में आ गया होगा और दीगर हमारे नाज़रीन को भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ मैं आपकी एक तवज्जो दिलाता चलूँ, बाज़ुकात होता ही कि आप कोई मामला कर रहे होते हैं और उसमें आपके अपने मफादात होते हैं, लेकिन शरीयत का जो हुक्म होता है किसी न किसी जाविये पे आप तक पहुँच रहा होता है कि दुरुस्त नहीं है, आप उससे सरफ़े नज़र करते हैं। और इसलिए सरफ़े नज़र कर रहे होते हैं कि वसवसा ये होता है कि अगर हम उलमा के पास जाएंगे, मुफ्तान इकराम के पास जाएंगे तो शायद फंस जाएंगे। तो देखिए, फंसते नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह दुनिया में भी निकल जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो आखिरत में भी इसकी बरकतें और कामयाबी जो है वो मुकद्दर बन सकती है। अगला सवाल दीजिए। शौकत हुसैन अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ कादरपुर रामा से। मेरा मुफ्ती साहब की खिदमत में ये सवाल है कि मैं एक जगह पर काम करता हूँ, वहाँ से मैं आर्डर ले लेता हूँ और फी पीस मुझे 50 रुपये कमीशन मिलता है कमीज़ तैयार करने का। तो मैं मुख्तलिफ घरों में लेडीज़ के अंदर वो घर वालों के ज़रिए पहुँचा देता हूँ और लेडीज़ वो कमीज़ें तैयार कर देती हैं। हमें 50 रुपये कमीशन वहाँ से मिल रहा है। जितनी मजदूरी वो देते हैं, हम आगे मजदूर को उसमें से भी कम करके क्या यहाँ से मजीद बचत भी कर सकते हैं? जबकि हमें 50 रुपये कमीशन तो हमारा वहाँ तय है कि आप इतने पीस तैयार करके लाएं, आपको 50 रुपये कमीशन मिलेगा। 400 रुपया फी कमीज हम आपको मजदूरी देंगे। हम आगे 350 रुपया लेबर से बात कर लें, 50 रुपये हमें इधर से भी बच जाए, 50 रुपये हमें उधर से भी बच जाए। क्या ऐसा करना हमारे लिए जायज़ है या नाजायज़ है? हमारी शरई तौर पर रहनुमाई फरमा दें। ठीक है। माशाल्लाह, एक बड़ा ही अलग सवाल आया है ये जी। इस मसले की 3 सूरतें बनेंगी। ठीक। एक सूरत ये बनेगी कि ये अपना इन्वेस्ट करें। ठीक है। ठीक है, कपड़ा खरीदें। ठीक है। लोगों को दें। सही। उनके साथ जो मर्जी कीमत तय करें और फिर आगे कंपनी को अपना नफा रख के बेच दें। ठीक है। ये पहली सूरत बनी। सही है। ये सूरत इन्होंने नहीं अपनाई हुई। सही है। दूसरी सूरत ये है कि ये खुद वेंडर बन जाए। ठीक है। अभी ये कमीशन में काम कर रहे हैं ना। जी जी। ठेकेदार नहीं है जी। जो ब्रोकर है वो सिर्फ 2 पार्टियों को मिलवाने का काम करता है। सही। और कमीशन लेता है। सही। और ये कर रहा है, बीच का टॉप लेने का वो इख्तियार नहीं रखता। ठीक। तो
अगर यही सूरत हाल रहती है कि ये कमीशन एजेंट हैं, इस सूरत हाल में तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि जनाब मजदूरों से जो तयशुदा है वो उससे कम दें उनको, ठीक है, या उससे कम पे उनको राजी करें, ठीक, या आगे ये बताएं कि जनाब ये जो है वो इतने में सिलवाया है, हालांकि उतने में ना सिलवाया हो, कम में सिलवाया हो। ब्रोकर ऐसा नहीं कर सकता। सही। तीसरी सूरत ये है कि खुद वेंडर बन जाए, ठीक है, खुद ठेकेदार बन जाए, सही, कंपनी से जो है वो मुआहदा ठेकेदारी कर लें कि आपको हम पर पीस तैयार करके देंगे और इतने पैसे आपसे उजरत लेंगे। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे वो हम जाने। आगे क्या करेंगे ये इनका मैटर है। ठीक है, भले मटेरियल कंपनी का हो, सही है, लेकिन जो कारागिरी और जो बनावट है और जो एक अमल है उसके अंदर, जी जी, उसके ये वेंडर बन जाएंगे। ठीक है, तो एक तो वेंडर की सूरत हुई, कमीशन एजेंट की सूरत हुई, और तीसरी सूरत हुई खरीदो फरोख्त की। ठीक है, ऐन मुमकिन है कि इनकी हैसियत वेंडर की हो, ठीक है, ऐन मुमकिन है, ठीक है, लेकिन ये कमीशन से उसको ताबिर कर रहे हो, सही, तो ये इनको समझना चाहिए कि कमीशन एजेंट बनने में और वेंडर बनने में क्या फर्क रहेगा। ठीक है जी, तीनों सूरतें बयान कर दी गई हैं जो मुमकिन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अब्दुल हमीद अतारी अर्ज कर रहा हूँ, पंजाब जिला लिया के शहर पहाड़पुर से। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि हमारे इलाके में खाने के लिए भी रेट जो है ना वो कम कराया जाता है होटल से। जब खा लेते हैं फिर जब पैसे मांगते हैं तो ये कहते हैं यार बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, आप कुछ कम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में मुफ्ती साहब ये भी है कि खाना खाने के दौरान भी रेट कम करवाया जाता है। क्या बात है। ठीक है जी, गोया कि इन्फॉर्मेशन दिया आपने एक कि जो हमारे इल्म में था कि खाने पे कमी नहीं होती मुफ्ती साहब, तो ये आ गई है। चलें जी, अगला सवाल दीजिए। सवाल ये है कि हम हजाम का काम करते हैं ना, तो ये शरीयत के मुताबिक इसके बारे में पूछने की जायज है या नाजायज? हजाम जो काम शरीयत के मुताबिक करेगा वो जायज होगा, जो खिलाफ वर्जी करेगा वो नाजायज होगा। जैसा कि दाढ़ी मूंडना, ये एक ऐसा काम है कि जो नाजायज है, एक मुट्ठी से कम करने की भी इजाजत नहीं है। अच्छा, बाल आमतौर पर जिस तरीके से शुरफा कटवाते हैं जी, शुरफा जो है जी जी, उसके काटने में तो कोई नाजायज पहलू नहीं है। ठीक है, लेकिन बाज ओबाश किस्म के जो लोग हैं जी, वो जो कटिंग करवाते हैं वो तो बड़ी ही अजीबो गरीब, और कज़ा जो है ना, काफ ज़े आइन, कज़ा के हुक्म में भी आ जाती है, कज़ा नाजायज है। यानी कज़ा ये होती है कि बिल्कुल अगले हिस्से में बाल रखना, बिल्कुल अगले हिस्से में, ठीक है, और सारा जो है पीछे से गायब हो जी। तो इसकी तो बिल्कुल मुमानत आई है हदीस में। और इसके अलावा छोटे बड़े बाल हैं सेटिंग से जो रखते हैं जी जी, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब बालों का मसला कम रहेगा, ठीक है, लेकिन दाढ़ी जो है वो कैसे मुड़ सकता है, ठीक, उसकी इजाजत, दाढ़ी जब मुंडवाना जो है वो नाजायज है, ठीक है, तो इसमें मदद और मुआविन बनना, ठीक है, ये भी जायज नहीं होगा। ठीक है, यानी शरीयत ने जो हुदूद दी उसमें रह के काम, बहुत सारे काम करता है हजाम। मतलब बाज़ हजाम जो है उसके दुकान में भूसा खाना भी होते हैं जी, तो वो एक सर्विस दे रहा होता है, ठीक है, ठीक है, वो जायज है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हजाम जो है वो छोटे शहरों के अंदर खाना भी पकाते हैं, ठीक, मतलब कि खाना पकाने की फील्ड भी होती है उनकी। ठीक है, यानी एक ही बंदा दो काम कर रहा ठीक है। बहुत सारे हजाम जो है वो शादी ब्याह में आते हैं और वहाँ के ऐलान का काम करते हैं, ठीक है, चिट्ठी भी घरों में जाके बांट के आते हैं, कार्ड बांट के आते हैं। ठीक है, तो शहर के अंदर जो हजाम है, गांव के अंदर जो हजाम है, ठीक है, इनके बहुत मुख्तलिफ काम है। ठीक है, और अगर आप डिफेंस और क्लिस्टन चले जाएंगे जी, तो मजाल है कि आप किसी को हजाम कह सकें। ठीक है जी, तो नाम ही नए होंगे उसके। तो ठीक है, क्या नाम होता है, सैलून वगैरह बन गए और जो है ना हेयर ड्रेसर वगैरह बन गए, और उसमें मजीद जो है वो वसअत आ गई है। तो बहरहाल उसूली तौर पे मुफ्ती साहब ने पैगाम दिया है कि शरीयत के दायरे में रहकर जो काम है उसकी इजाजत है, जो काम फी नफ्सी जायज है, ठीक, उस पर सर्विस भी जायज है। ठीक है, मुझसे वो पीछे जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि खाने के रेट भी कम करा लेते, तो जायज तो है ना खाने के भी रेट कम कराना। पहले अगर करवाते हैं तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है, पहले करा लें। ठीक है, अगला सवाल दीजिए। ज़कात की रकम कब्रिस्तान के अंदर जो गड्ढे होते हैं उनमें उन पैसों से मिट्टी डाली जा सकती है ताकि वो भर जाए और मुर्दों के लिए जगह ज्यादा हो जाए। ज़कात की रकम, ज़कात ही समझ में आया। एक होता है मफादे अम्मा के काम, ठीक है, हमारे फुकाए कराम ने पुलों के ताल्लुक से बयान किया है कि जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं जी, मफादे अम्मा के काम है।
اور ان کے لیے ہیلہ شرعی کے ذریعے جی زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. خاص مردے کے متعلق بیان ہوا کہ مثال کے طور پہ کوئی مردہ لاوارث پایا گیا ہے، اب اس کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ تو جاندار ہے نہیں کہ زکوٰۃ کی ملکیت کا جو فریضہ ادا کر سکے، تو ہیلا کروا کے جو ہے وہ اس پر خرچ کرنے کی رعایت فقہائے کرام نے دی ہے. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ قبرستان ہے. قبرستان ایک وقف زمین ہوتی ہے جی، اور مفاد عامہ اس سے جو ہے وہ متصل ہوتی ہے. اور اب یہاں دو صورتیں بن رہی ہے. ایک تو یہ مثال کے طور پر ایک جگہ گڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دینے والوں نے ہی وہاں اپنی قبریں مختص کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی زکوٰۃ سے خود ہی فائدہ اٹھائیں گے، یہ جائز نہیں ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ عامۃ المسلمین اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، تو وقف زمین کے اوپر یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. بہتر تو یہ ہے کہ دیگر وسائل سے اس کام کو بروئے کر لایا جائے. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہیلا کرنے کے بعد جی یہاں استعمال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہاں استعمال ہو سکتی ہے. آپ نے ایک اصول بھی دیا، تو اس اصول کو کیا جو عوام ہیں، عام افراد ہیں ہم جیسے، کیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس طریقے سے زکوٰۃ استعمال کر لیں؟ زکوٰۃ کے استعمال کرنے کے لیے شرعی فقیر کی ملکیت، جی، زکوٰۃ ایک دی جاتی ہے پرسنس کو، افراد کو. ٹھیک ہے. افراد کو تو ضابطہ شریعت نے بڑا کلیئر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو غربت کی لکیر کے اس پٹی کے نیچے ہوگا جی اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. صحیح ہے. اور جو اس پٹی سے اوپر ہوگا اس کو نہیں دی جائے گی. صحیح. تو وہ پوری ایک تفصیل کتابوں میں موجود ہے، ہم نے بارہا بیان کی کہ شرعی فقیر کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری جگہ وہ آ جاتی ہے کہ جہاں پر اداروں کا معاملہ آ جاتا ہے، صحیح، یا مفاد عامہ کے معاملات آ جاتے ہیں. جی میں نے پلوں کی مثال دی. جی ہے. جی. بعض اوقات ہاسپٹلس میں مریض آتے ہیں، نادار مریض آتے ہیں، وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ آ جاتا ہے. ٹھیک. وہاں مشینیں رکھنے کا معاملہ آ جاتا ہے. ٹھیک. تو عوام کو تو کسی بھی اصول کو اپلائی کرنے کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر کیس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ صورتحال کیا ہے، ٹھیک ہے، کس بات کی گنجائش موجود ہے، صحیح، متبادل ذرائع موجود ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک. تو علماء کا کام ہوتا ہے اپلائی کرنا، مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے. ٹھیک. تو آپ نے بھی یہی کرنا، جب کوئی اس کے علاوہ بھی صورت ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یہاں لگ جائے گی، تو بھی دارالفتہ اہل سنت سے کسی مستند سنی عالم اور مفتی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اور پھر ہی وہ کام کرنا ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرا رولنگ شٹر کا کام ہے، اور اسکوائر فٹ سے جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو پہلے ریٹ طے ہو جاتا ہے کہ اتنے روپے پر اسکوائر فٹ ہم کام کریں گے. پھر اس کے بعد میں طے ہونے کے بعد میں جب فائنل جب پیمنٹ دینے کی باری آتی ہے تو پارٹی اس میں پیمنٹ کم کراتی ہے، اور ابھی رواج سا چل گیا ہے. تو اب ایسی صورت میں جو پارٹیاں جو معلوم ہے کہ پیسے کم کرائیں گے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر ریٹ بڑھاتے ہیں تو وہ تو کسی اور جگہ چلے جائے گا، ریٹ کم کرتے ہیں تو وہ پھر اور فائنل کے ٹائم اور پیمنٹ کم دیں گا. تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. کام کس کا بیان کیا تھا؟ مطلب کوئی رولنگ وغیرہ کرتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں، یعنی گرافکس ہوتی ہیں آج کل دیواروں پہ، اس قسم کے کام جو ہے اسکوائر فٹ کے حساب سے ہوتے ہیں. اسکوائر فٹ پہ ریٹ طے ہو جاتے ہیں، اور پھر مجموعی طور پہ جب سارا کام ہو جاتا ہے وہ ناپنے کے بعد بتا دیا جاتا ہے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ اسکوائر فٹ ہے. دیکھیں، آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ کام سے پہلے جو ریٹ طے ہوئے ہیں، معافی جی، آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ کام سے پہلے ریٹ طے کیے جائے. ٹھیک ہے. اور جو ریٹ طے کیے اسی پر جو ہے بندہ قائم رہے، اپنی زبان پر قائم رہے. صحیح. اب ممکن ہے کہ کام اس کیٹیگری کا نہ ہوا ہو جو بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں تو کسٹمر کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کمزوری کی وجہ سے پیسے کم کروانے کی درخواست کرے. ٹھیک ہے. بلکہ وہ استحقاق رکھتا ہے، درخواست کیا کرے گا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کام مکمل اسی طریقے سے ہوا ہے جو طے ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اب کسٹمر کا حق تو نہیں بنتا کہ پیسے وہ کم کروائے، کیونکہ طے ہو چکا ہے. صحیح ہے. لیکن میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اب یہ جو ایک معاملہ ہے اس قدر شائع اور ضائع اور معروف ہے کہ اسے معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا. جی. تو اب کام ہو چکا ہے، اب ایسا تو ہے نہیں کہ پارٹی بھاگ جائے گی. جی. تو یہ چاہیں تو پیسے کم نہ کریں. ٹھیک ہے. ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے.
इनको इस्तेकाक के पैसे इस्तेकाक के कम ना करें। अगर ये समझते हैं कि चलो एक बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, अखलाकियात का तकाजा है, कर देता हूँ, जी कर भी सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें इस्तेकाक है, इन्हें करना चाहे करें, नहीं करना चाहे नहीं करना चाहे ना करें। हमारे सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल दोपहर आप 1 बजे ये सिलसिला मुकर्रर टेलीकास्ट देख सकते हैं और उम्मीद है मदनी चैनल का जो फेसबुक लाइव का पेज है उस पर भी ये लाइव गया होगा, तो वहां से भी आप जब चाहें तो इसको दोबारा से देख सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आज हमारा सिलसिला है 199। जी, अगला सिलसिला हमारा जो है वो 200 होगा, अल्लाह ने चाहा। इंशाअल्लाह अगला सिलसिला जो होगा 200 होगा। कोशिश करेंगे कुछ खास हो जाए, कोशिश तो है, मुफ्ती साहब को पता नहीं, आपको हम बता नहीं सके, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश है कि कुछ उसमें खुसूसी सिलसिला हो जाए। हमारा जब अहकाम तिजारत का 100 एपिसोड हुई थी, तो जब भी हमने कुछ खुसूसी करने की कोशिश की थी, कुछ दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की थी आप लोगों के लिए, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा इतवार को 200वां सिलसिला जो होगा उस पर भी कुछ कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसास करे लोगों पे मुझे जैसा बना दे, एहसास